एक फंक्शन इसमें होता है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी लीव सम ब्लैंक स्पेसेस बिफोर स्ट्रिंग and some blank spaces can be given after string even or in between, like here I am giving some extra spaces before string and in between the string, but अब हम इसे यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, बट आफ्टरवर्ड्स आई वांट टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग with after removing these leading blanks. The spaces before the string are known as leading blanks. Extra spaces before after this string are known as trailing blanks. So I don't want any leading blank here. So what do I need to do? For this I need to use function trim, s dot trim, and then I will compile my program. Let's see. This is the original string. Here we have this extra space given before the string because I have printed the string as it is. But after using this trim function, all the leading blanks are removed here and the string is printed. But this trim function won't work on the extra spaces which are given within the string. It doesn't work on these spaces between the strings. So this is how we can print any string after removing all the leading blanks. Then that day I told you how to replace one string from other. इसी का ये एग्जाम्पल दिया था आपको. अगला हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगला फंक्शन है हमारा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक लिखा है यहाँ पर हमने स्ट्रिंग s में, and I am declaring another string s1 that is equals to book. The difference between the string that this string starts with small b and here it starts from capital B. Okay. Now I want to check whether one string is equal to other one or not. And for this we need a function equals. We are given a function equals here, and this equals function is a Boolean function and it will return either true or false. Equals function compares both the given strings and see if both the strings are identical or not. If both the strings are identical, then it will return true, but if they are not identical, that is not same to same, then it will return false. Compiling this program, running it, and it returned false. You know the reason why it returned false? Yes, ma'am. Tell me. Ma'am, because the SI value of capital B and small b is ASCII value of capital B and small b is different. Exactly. So it will return only true when both the strings are identical, that is both the strings are matching or same to same. Otherwise अगर अलग words है तो obviously फिर तो वो करेगा ही करेगा false. But even if both the strings are written, the spelling is the same but the cases are different, even then it will return false. तो ये आपका equals function है. इसी तरीके से एक और function होता है यहाँ पर हमारा, that is compare to. Compare to is another function which is used to compare between two strings, but it's not like equals, that it doesn't check whether the given strings are equal or not, that is identical or not. Here it compares the ASCII value of given strings and it returns output in three ways. There are three forms of output if we use this compare to function. Firstly, it returns any positive integer, or it can return any negative integer, and thirdly it returns zero value. तो तीन outputs इसके होते हैं. When it returns positive integer, it returns positive integer when ASCII value of first string is greater than second one. Then it returns positive integer. And when the ASCII value of first string is smaller
then second string, second one, then it returns negative integer, and when the ASCII value is similar, then the second string, then it returns 0. तो पॉजिटिव इंटीजर आउटकम हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है. पॉजिटिव पहले स्ट्रिंग के ASCII वैल्यू के बड़े होने पर होगा सेकेंड स्ट्रिंग से कंपेयर करने पर, नेगेटिव फर्स्ट स्ट्रिंग के ASCII वैल्यू के छोटे होने पर होगा सेकेंड स्ट्रिंग से, और 0 जब दोनों की ASCII वैल्यू सेम होगी. लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 1 और 52 और 43. तो ये कैसे आता है कि 1 आ गया या 43 आ गया, तो ये कैसे आ गया, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये इसी बेसिस पे रिटर्न करता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ASCII वैल्यू ऑफ बोथ द गिवन स्ट्रिंग्स. दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों के ASCII वैल्यूज को, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही ये रिटर्न करता है. जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बुक और यहाँ भी लिखा हुआ है बुक. ओके, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम. अभी मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ कंपाइल करके, और देखिए इसने रिटर्न क्या किया, 0. 0 क्यों रिटर्न किया इसने, बिकॉज इट कंपेयर्ड द ASCII कोड ऑफ दिस B of book and this B of book, and because both the ASCII codes are same, that is why it returns 0. अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इसको कैपिटल B में कन्वर्ट कर दे रही हूँ. सो इस स्मॉल b के, देखिए हमेशा मैंने आपको बताया भी है that the ASCII code of alphabets which are in lower case is greater than the ASCII codes of characters which are in upper case, क्योंकि इसकी एक अपनी एक रेंज होती है. रेंज क्या होती है, जैसे ASCII कोड्स में जो हमारे कैपिटल A to Z हमारे हो गए ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, देन हमारे इसके अलावा स्मॉल a to स्मॉल z के ASCII कैरेक्टर्स हो सकते हैं, देन वी हैव ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 9 अपने इंटीजर्स के हो सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल कैरेक्टर्स के भी ASCII कोड्स हमारे होते हैं. तो कैपिटल A का जो ASCII कोड होता है दैट इज 65 and it ranges up to 90. That means this ASCII value of capital Z is 90. इसी तरीके से small a का होता है हमारा, then it is 97 and it ranges up to 122. और 0 से लेके 9 तक के जो ASCII कोड्स, इनके जो इंटीजर्स के ASCII कोड्स होते हैं that is 48 to 57. इसका मतलब 0 का 48 होता है और 9 का होता है 57. बाकी जितने भी होते हैं, क्योंकि जो ASCII कोड्स की रेंज होती है दैट इज बिटवीन 0 to 255, माने टोटल 256 कैरेक्टर्स आर देयर. ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन ASCII वैल्यू दैट में रेंज फ्रॉम 0 to 255, और उस 0 to 255 में the values we are having for these characters is this one, these lowercase characters is this one, and numeric characters is this one. Apart from this, all the characters have their own ASCII codes which may range from 0 to 255. जैसे I told you that space has its ASCII value as 32, तो enter की impression है, या आपके @ है, या आपका हैश सिंबल है, whatever the symbol you feed from keyboard, तो सभी symbols के लिए ASCII values दिए गए. तो अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे देखिए स्मॉल b लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल B, तो क्योंकि हम s को कंपेयर कर रहे हैं s1 से, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग फर्स्ट स्ट्रिंग टू सेकेंड वन. तो अब कैपिटल B स्मॉल b का ASCII कोड कितना हो गया, 98 हो गया, और कैपिटल B का ASCII कोड कितना हो गया, 66 हो गया. तो इट विल रिटर्न 98 minus 66, तो दैट विल बी 32. देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कंपाइल करिए, पर इसको प्रिंट करा दूं. क्लोज करा है हमको और यहाँ पर आ रहे हैं. तो देखिए उसने 32 दिया. क्यों 32 दिया, क्योंकि स्मॉल b के ASCII कोड से सबट्रैक्ट हुआ हमारा कैपिटल B का ASCII कोड. छोटा सा अगर हम डिफरेंस यहाँ पर कर दें अपने प्रोग्राम में, दैट इज अगर हम यहाँ कह देते हैं s1 डॉट कंपेयर टू s, दैट मीन्स नाउ वी आर कंपेयरिंग सेकेंड स्ट्रिंग फ्रॉम द
फर्स्ट वन। तो अब जो आउटपुट है हमारा वो पॉजिटिव से देखिए नेगेटिव में हो गया -32। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये आउटपुट दे रहा है 98 67 माइनस 66 माइनस 98 दे रहा है, और उसका आउटपुट जो है आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंपेयर करता है। Ma'am, if the whole word is different, हाँ, वर्ड like first is book, second is copy, then what will be the positive integer? फर्स्ट इज बुक एंड द अदर वन इज कॉपी। हम कंपेयर कर रहे हैं और इसने क्या रिटर्न किया? 1। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि बुक का जो बी था दैट वाज कंपेयर्ड बाय सी ऑफ कॉपी। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसलिए इसने 1 दिया। सेकंड स्ट्रिंग पहले लिखा है ना, तो सी का आस्काई कोड क्या होता है? सी का आस्काई कोड होता है 97 90 95 97 और बी का हो गया 96। तो 97 माइनस 96 कंपेयर हुआ, क्योंकि यहाँ पे S1 पहले लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे S1 लिख दें, अब ये देखिए -1 दे देगा। ये देखिए, है ना? तो दैट डजंट मैटर कि आपका स्ट्रिंग सेम है या डिफरेंट है, वो कंपैरिजन करता है आस्काई कोड्स का। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू Ma'am, it only compares the first one. Yes, it compares on the first character. P5. नहीं, first character is compared. तो इसीलिए देखिए 1 दे रहा है, नहीं तो फिर तो ये क्या, इसको फिर केस को कंपेयर करना चाहिए था y से। तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों जो स्ट्रिंग हम दे रहे हैं बोथ स्ट्रिंग्स माइट हैव सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट्स नॉट कंपल्सरी। तो इट कंपेयर्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बोथ द गिवन स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स द आउटपुट इन ईदर ऑफ 3 वेज। तो आपके एग्जाम में इट माइट कम योर क्वेश्चन कि अगर कंपेयर टू फंक्शन रिटर्न 0 देन व्हाट इज द रीजन। तो आप बता सकते हैं कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करे दैट मींस ASCII code of first string is greater than the ASCII code of second string. If it is returning negative value, then ASCII code of first string is smaller than ASCII code of second string. तो इस तरीके से ये आप यूज करते हैं। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, तो अभी ये तो हो गया हमारा कंपेयर टू। बाकी तो अभी और सब फंक्शंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सबस्ट्रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक सबस्ट्रिंग फंक्शन। 10th में तो काफी सारा आपका स्ट्रिंग पे पूरा एक चैप्टर ही है। अभी 9th स्टैंडर्ड में तो इतना कुछ है नहीं, बट खैर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग Ma'am, in book string is not there. हाँ, string is not there, I know, but still as I told you that I'll tell you some functions related to string, that's why I'm telling you. So you are getting some advanced knowledge of upload this video on YouTube. Upload this video. Why you want to see it again? No, ma'am, because string is not in the book. So when I will study, I will. Okay. I'll ask the person who is dealing with these videos to upload it. Okay. चलिए, अगला फंक्शन हम कर रहे हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन है। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग यहाँ पर डाल दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर इन अपरकेस। अब सबस्ट्रिंग का मतलब ये है कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, लाइक अभी यहाँ पे दिया हुआ है हमने, और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं s डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी s कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कहां से कहां तक का स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो मान लीजिए मुझे इस सब स्ट्रिंग में PUT चाहिए, यानी कंप्यूटर में से इस पुट को रिटर्न कराना है। तो उसका मतलब 0 1 2 3 कौन से उससे शुरू करना है? इंडेक्स वैल्यू से, थर्ड इंडेक्स वैल्यू से शुरू करना है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू रिटर्न? I want to return 3 characters of this string. Then I'll close this. पहले हम ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करा दे रहे हैं ना। आफ्टर दैट आई एम प्रिंटिंग एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग। कंपाइल कर रही हूँ मैं, इसको क्लोज कर रही हूँ, और यहाँ देखिए अब ये, ओह सॉरी, I haven't.
कैपिटल तो वो था नहीं। ये तो दे रहा है। थ्री से कहाँ तक लेना है? थ्री से मुझे लेना है 0 1 2 3 3 4 5। कहाँ तक की इंडेक्स वैल्यू तक जाना है? फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू तक जाना है। और इसे कम करूंगी अब तो देखिए ये इसने क्या प्रिंट करा? PU प्रिंट करा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है इसमें जो हम इंडेक्स वैल्यू डालते हैं तो पहली जो इंडेक्स वैल्यू डाली जाती है वो तो स्ट्रिंग की इंक्लूड की जाती है, लेकिन जो बाद में हम इंडेक्स वैल्यू डालते हैं उसके पहले कैरेक्टर तक हम जाते हैं। माने अगर हमने यहाँ पे 5 दिया है तो हम 4 तक जाएंगे, अगर हम यहाँ पे 6 देते हैं तो हम 5 तक जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू रिटर्न पुट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 and from 3 4 5, but I need to write 6 here so that I may get character which is at index value 5। तो इस तरह से यहाँ पे देंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू देनी होती है और यहाँ पर लास्ट इंडेक्स वैल्यू की नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू देनी होती है ताकि आप वो स्ट्रिंग वो वाला कैरेक्टर भी रिटर्न करा ले जहां तक का आप चाहते हैं। तो उसे एक एक्स्ट्रा आपको देना होता है, तब कंपेयर करेंगे और यहाँ पर ये देंगे। अभी जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉम चाहिए, COM चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आई हैव टू स्टार्ट 0 देन 0 1 2 तक चाहिए तो कहाँ तक लिखेंगे? 3 तक लिखेंगे एंड देन आई क्लोज कॉम। इसी फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर तो दे दिया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम वेयर आई वांट टू स्टार्ट विद वो तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड इन दिस मैनर ऑल्सो। तब क्या करता है ये कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गिवन इंडेक्स वैल्यू एंड रिटर्न्स एंटायर स्ट्रिंग, मानी उसके बाद का पूरा स्ट्रिंग ही आपको रिटर्न करेगा। तो you'll be having number of questions in your 10th standard regarded strings। अभी ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, बताएंगे tell the output, what will be the output of this function। तो ये सारी चीजें जो है तब बहुत हेल्पफुल होती है। तो फिलहाल आई होप कि मैंने आपको ये जो स्ट्रिंग से रिलेटेड सब चीजें करा दी हैं जो मुझे करानी थी, और जो फंक्शंस थे वो भी मैंने करा दिए हैं। बाकी 10th स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तो पूरा एक चैप्टर है और स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन है दोनों तरीके से। अभी तो सिर्फ आप स्ट्रिंग को ले रहे हैं, फिर आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट करा के मतलब स्कैनर क्लास के थ्रू कैसे कराते हैं, और आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड बफर फंक्शंस भी हैं जो आप यूज करेंगे। तो ये चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, दैट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्टिंग वैल्यू दैट बिलोंग्स टू वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे उसके लिए एक नई क्लास बना दे रहे हैं यहाँ पे हम, कन्वर्ट के नाम से। हमने मान लीजिए ये ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया सपोज हमने कैर सी लिया और उसमें हमने एक कैरेक्टर डाल दिया कैपिटल A, और अब मैं इसे प्रिंट करा रही हूँ। सी की मुझे आस्काई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सी तो हमारा कैरेक्टर है जिसमें आप प्रिंट होगा, तो अगर यहाँ सी लिख रहे हैं तो यहाँ तो कैपिटल A। हाँ, I need to write int and then I will use this C।
कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और रन कराएंगे तो ये देखिए आपको किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड इस तरह से मिल सकता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है जावा का, वो बहुत सारे काम खुद ही कर देता है। जैसे ये तो कैरेक्टर था तो आपको पता चल गया। अभी सपोज मैं यहाँ पर इंटीजर लेती, इंटीजर ए लिया, उसमें हमने 45 डाला, और यहाँ पर हमने इंटीजर बी लिया, उसमें हमने फिर 45 डाल दिया, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सम इज, और यहाँ पर आप सम प्रिंट करा रहे हो ए प्लस बी का, कंपाइल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 90 आ गया है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हम इंटीजर ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं डबल, ये तो इंटीजर है और यहाँ ले लिया हमने डबल, 45 की जगह मान लीजिए हमने ले लिया 48.25, डबल है तो वी कैन गेट सम डेसिमल वैल्यूज। और अब मैं प्रिंट करा रही हूँ दोनों का सम, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना? अगर मैं यहाँ पे 48 की जगह 45 कर देती हूँ, व्हाट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी 90.25, 90.25, बिकॉज देखिए जो डेटा कन्वर्जन की बात आती है तो हमारा जो कंपाइलर है हमारी लैंग्वेज का, वो बहुत ही स्मार्ट इनफ होता है और ये कन्वर्जन अपने आप ही करता है। माने जो ये डेटा टाइप के कन्वर्जन होते हैं, इसको ये दो तरीके से होता है। एक होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। Implicit conversion means when compiler is doing by itself, we don't have to put in any special effort to do that. So if it is done by itself, then it is known as implicit conversion. But if we have to force compiler to do that, then we call it as explicit conversion. So explicit means we are putting some extra efforts to do that. अभी देखिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इंटीजर है एक और एक डबल है, दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद हम आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट हमें डबल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, बिकॉज कंपाइलर गिव प्रायोरिटी टू डबल देन इंटीजर। इंटीजर जो है वो लेस प्रायर होते हैं एज फार एज कंपेयर टू डबल वैल्यूज। तो दैट इज वाई इसने ये कन्वर्जन खुद करा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन किया। लेकिन अगर हम ये चाहते थे कि ये हमें डेसिमल वैल्यूज को ऐड करके दिखाए ही नहीं, अगर 90 है तो 45 ऐड करें, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इवन इफ द वैल्यूज आर इन डबल, हाँ, देन वी नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू दिस। एंड फॉर दैट अब मैं यहाँ पर ये INT लगा रही हूँ ऐसे, तब क्या करेगा, तब भी ये सम रिटर्न करेगा, बट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लिसिट एफर्ट इट विल रिटर्न द वैल्यू as per my choice, whatever I am giving. So this kind of conversion is known as explicit type conversion. तो ये एक टाइप कन्वर्जन का बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें आपकी जो है, yes ma'am, how can we print the ASCII value of an integer? ASCII value of an integer, you can print it like, yes ma'am, just a minute. अब मुझे मान लीजिए प्रिंट कराना है ASCII वैल्यू ऑफ सपोज 9 प्रिंट करानी है, ठीक है, तो 9 तो मैंने डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, okay ma'am. As I told you that 9 ASCII code of 9 is 57 and ASCII code of 0 is 48, तो ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो। तो ये चीज हो गई। बाकी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होता है, yes ma'am, ये तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको। फिर एक होता है आपका जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट रह गया बस, बाकी सब हो गया आपको बताने वाला। जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका नाम मैं रख देती हूँ यहाँ पर, स्किप।
जंप नाम से ही पता चल रहा है, आज तो टाइम हो गया, इसको मैं अगली क्लास में बताती हूँ आपको आयुष, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको मैं आपको अगली क्लास में बताती हूँ। तो ये जंप स्टेटमेंट हो जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा, जो कुछ भी आपको लगता है वो मुझे बता देना। तो परसों वाली जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी फाइनल क्लास। तो कोई डाउट्स या किस तरीके का कुछ है तो बताइएगा मुझे। फिर ये क्लास का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। एंड डू टेल योर मॉम ऑल्सो एंड योर डैड ऑल्सो दैट कोर्स इज फिनिश्ड नाउ, और आप अपना क्लासेस ज्वाइन करिए। आपके स्कूल में भी शुरू हो गई होंगी ना क्लासेस? तो यस मैम। तो उसमें कंप्यूटर फ्रॉम टुडे, तो अभी कंप्यूटर तो हुआ शुरू कि नहीं हुआ? मैम हो गया। हो गया मैम ऑन सेकंड चैप्टर। यू आर ऑन सेकंड चैप्टर। चलिए ठीक है, तो अभी देखिएगा कोई भी चीजें अच्छे से पढ़िएगा, गो थ्रू योर एंटायर सिलेबस। और मुझे लगता है कि आप काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए प्रोग्रामिंग पर। एंड फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट देयर। ओके ओके, देन दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके।